Hello students, welcome back to our English class called the learning platform. Today I'm going to continue the chapter The Lost Child, and this is the second part of this chapter. Let's start. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs conversing to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they were about to reach the fair, जैसे ही वो लोग फेयर में मेले में पहुंचने वाले होते हैं, द चाइल्ड शॉ ह्यूज क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस टुवर्ड्स द फेयर. देन ही शॉ दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो कि फेयर की तरफ, उस मेले की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही क्राउड हो रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग हैं. द डेंस क्राउड स्केयर्ड हिम एंड ही स्टेप्ड बैक फॉर अ वाइल. और इतनी भीड़ भाड़ को देख के वो थोड़ा स्केयर्ड हो जाता है and he stepped back. But after some time, he got attracted to the mind boggling crowd of humanity. और आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है उन सब चीज़ों को, भीड़ भाड़ को देख के, और वो बहुत ही इंजॉय करने लगता है. Now see the next paragraph. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child stared open eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured. Murmured means बुदबुदाना, मन में बोलना. But he half knew as he begged that his pay would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. Here, heeded is a word, it means paid attention. Now, in this paragraph, when at the entrance of the fair, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो फेयर के entrance के पास देर इज एक कॉर्नर में, वन कॉर्नर अ स्वीट मीट सेलर हैड सेट अप अ शॉप. एक कॉर्नर में एक स्वीट मीट सेलर रहता है जो कि स्वीट्स बेचता है. ही वॉज सेलिंग वेरियस स्वीट्स. वो बहुत टाइप के, बहुत वेराइटी के स्वीट्स बेच रहा होता है, लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी. The sweets were displayed at different heights and were covered with foils of gold and silver. एंड जो भी वहां पे स्वीट्स थे वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखे हुए थे, एंड दे वर कवर्ड विथ फॉइल्स. गोल्ड फॉइल, सिल्वर कॉइल से, फॉइल से ढके हुए थे और कवर किए हुए थे. द माउथ्स The boy's mouth watered when he sighted his favorite बर्फी. When he saw his favorite बर्फी, जैसे वो अपनी फेवरेट बर्फी को देखता है, जो बर्फी जो उसकी फेवरेट स्वीट रहती है, देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है. Then he expressed his desire to get one in a low voice. और वो धीरे से अपने डिजायर को बोलता है कि उसे जो है बर्फी चाहिए. Expressed his desire in a low voice. लो वॉइस में बोलता है. Because लो वॉइस में इसलिए because he knew that his parents would be refuted his रिक्वेस्ट. उसे पता था कि जो उसके पेरेंट्स है वो जो भी डिमांड कर रहा है, वो जो भी डिजायर है, उसे पूरा नहीं करेंगे, तो इसलिए वो लो वॉइस में बोल रहा होता है. दे वुड से दैट ही वाज ग्रीडी फॉर द बर्फी. और वो क्या बोलेंगे, फिर एक रीजन देंगे कि ये ग्रीडी हो जाता है बर्फी को देखते ही, एंड एज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट हिज डिमांड वुड बी फुलफिल्ड. और वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल करेंगे, एंड दैट्स व्हाई ही वॉकड फर्दर. इसलिए वो आगे बढ़ जाता है. Now see the next paragraph. A seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay, heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. Now, the next stall was that of a flower seller.
अगला स्टॉल रहता है वो फ्लावर सेलर का रहता है, फूल बेचने वाले का। ही announced that he was selling garland of गुलमोहर फ्लावर्स। और हम देखते हैं कि दुकानों में जहाँ भी फेयर वगैरह लगता है तो वहाँ पे शॉप जो दुकानदार है वो चिल्लाते हैं कि जो भी सामान बेच रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो अनाउंस कर रहा है गुलमोहर फ्लावर्स का, दैट ही वाज सेलिंग गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स। द चाइल्ड वांटेड वन ऑफ दोज। अब उस बच्चे को उसमें से एक फ्लावर जो है वो चाहिए होता है। He walked towards the basket of flowers and again announced his desire to have one in a low voice। और फिर अपने डिजायर को वो धीरे से बोलता है, because he knew that, वो जानता था that his demand would not be fulfilled, वो जो भी डिमांड कर रहा है वो फुलफिल नहीं होगी। They would refuse to buy him the flowers as they would say that they were cheap। और वो फिर कोई ना कोई रीजन देंगे इसके पीछे कि वो फ्लावर्स इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही चीप है। और एंड देन अगेन द बॉय वॉकड अहेड विदाउट एक्सपेक्टिंग रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. Now, the next thing is that the child came across was balloon seller, and there are different colors of balloons. The boy was attracted to the shiny colors of balloons and wanted them all. एंड फिर वो नेक्स्ट स्टॉल पे क्या देखता है वो बॉय कि एक बलून सेलर है और एक पोल लाइक पोल की तरह एक स्टिक है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बलून्स लगे हुए हैं। एंड अब उसे वो बलून्स चाहिए होता है, तो लेकिन वो बस देख रहा होता है और वो उधर देख फिर डिमांड वो करता है, धीरे से ही वो डिमांड करता है कि उसे बलून्स चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बलून्स रहते हैं, मीन्स रेड ग्रीन पर्पल इस तरह के बलून्स रहते हैं। और वो जो बॉय है फिर धीरे से बोलता है दैट ही वांट दिस बलून्स, but he knew that his parents would not buy the balloons for him, and as they would give reason that reason फिर देंगे that he was too old, वो बड़ा हो चुका है, and this is not the correct age of playing this type of playing with this type of things। और इन सब चीजों के साथ खेलने का उसका एज नहीं है, वो बड़ा हो चुका है। तो द चाइल्ड वॉकड फर्दर, इसलिए वो फिर से आगे बढ़ जाता है। यस, नाउ इन दिस पैराग्राफ द बॉय देन ही पॉज्ड एट अ स्नेक चार्मर। एक स्नेक चार्मर है सपेरा, और वहां पे जब आगे चल के जब वो बॉय देखता है कि स्नेक चार्मर है एंड स्नेक चार्मर प्लेइंग फ्लूट, वो फ्लूट बजा रहा होता है। देन ही वॉज द बॉय वॉज पॉज दैट टाइम, वहां पे जाकर रुक जाता है। एंड द स्नेक वॉज ट्विस्टिंग इट्स नेक टू द म्यूजिक। जिस तरह की वो फ्लूट बजा रहा था स्नेक चार्मर, उसके म्यूजिक को सुन के जो स्नेक है वो अपने नेक को ट्विस्ट कर रहा था, म्यूजिक के ही हिसाब से वो ट्विस्ट कर रहा था। The snake had coiled itself in a basket and had raised its head out. It bent and moved its neck gracefully like a swan। और वो बहुत ही ग्रेसफुली जो है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जो इनविजिबल ईयर्स है, ईयर्स तो दिखते नहीं है स्नेक के, तो जो उसकी इनविजिबल, ऐसा लग रहा था कि जो उसकी इनविजिबल ईयर्स है, उसके ईयर्स में सारी म्यूजिक जा रही है, उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है। इसलिए वो इतना ब्यूटीफुली जो है, ग्रेसफुली जो है अपने नेक को मूव कर रहा था, और म्यूजिक के ही हिसाब से वो डांस कर रहा था, मूव कर रहा था अपने बॉडी को, अपने नेक को मूव कर रहा था। The boy walked towards the snake charmer, but
as his parents had warned him to remain away from the unpleasant music played by such men. एंड जैसे ही वो आगे बढ़ता है स्नेक चार्मर की तरफ, तब वो देखता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसे मना कर देते हैं आगे जाने से। और वो क्या रीजन देते हैं इसके लिए, कि इस तरह की अनप्लीजेंट म्यूजिक जो है नहीं सुननी चाहिए, इस तरह के लोगों की म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए। देन ही वॉकड फर्दर, फिर वो आगे बढ़ जाता है। Now, see the next paragraph. There was a roundabout in full swing, men, women, and children carried away in a whirling motion. Sigged and cried with dizzy laughter, the child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब फिर क्या होता है, नेक्स्ट जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टॉल, नेक्स्ट थिंग क्या देखते हैं, देयर वॉज अ राउंड अबाउट, there was a roundabout swing and it was full of men, women and children who were enjoying the ride. ये एक राइड है जो मेले में लगा हुआ है, झूला एक तरह से बोले तो, राइट। और उस पे बहुत सारे जो है लोग बैठे हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एंड दे वर enjoying the ride. The boy watched the people on the roundabout and then, with a lot of courage, expressed his desire to go on the roundabout. और फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बहुत एक्साइटेड था और वो जाने के लिए वो थोड़ा सा जो है अपनी हिम्मत दिखा के वो बोलता है कि उसे इस राउंड अबाउट पे जाना है। When his parents did not reply, he turned towards them. जैसे ही वो रिक्वेस्ट करता है, एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज फादर मदर आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, देन देयर इज नो रिप्लाई। व्हेन हिज पेरेंट्स डिड नॉट रिप्लाई, ही टर्न टुवर्ड्स देम। किसी तरह का रिप्लाई नहीं आता है तो वो उनकी तरफ टर्न करता है। देन ही शॉ दैट they were nowhere around. He looked around and behind, but his parents were nowhere to be seen. और वो जैसे ही टर्न करता है तो किसी तरह का रिप्लाई नहीं आता है। देन ही टर्न लुक एट हिज पेरेंट्स, पर उसके पेरेंट्स दिखते नहीं है। वो इधर उधर देख रहा होता है और अपने लेफ्ट राइट आगे पीछे वो हर तरफ देखता है, बट उसके पेरेंट्स जो है नहीं दिखते हैं। द बॉय, अब वहां पे द बॉय क्राउड लाउडली, और जो बॉय है वो बहुत ही जोर से रोने लगता है। jerked his body and ran here and there calling out for his parents। और वो उस टाइम अचानक से जब उसको देखता है तो उसके पेरेंट्स नहीं दिखे तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला कर रोने लगता है। और वो इधर उधर पूरा ढूंढने लगता है कि उसके पेरेंट्स गए कहाँ, पर उसको कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। He was full of fear and tears started rolling down his cheeks। और वो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो रोना शुरू कर देता है। एक अकेला रहता है, बच्चा रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर भी जाता है और वो रोने भी लगता है और उसके चिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रो रो के उसकी बुरी हालत हो जाती है। As he welched and ran around, his turban opened and his clothes become muddy। और वो डर से और फियर से और वो इतना दौड़ के ढूंढने लगता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए। और इसमें क्या होता है, जो वो टर्बन पगड़ी जो बांधे रहता है वो खुल जाती है पगड़ी, और उसके जो क्लोथ्स रहते हैं, जो उसके कपड़े रहते हैं वो पूरे मडी हो जाते हैं, कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। मतलब इतना दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, रो रहा होता है, इसमें उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में यू कैन सी दैट hither and hither, it means here and there। ओके, हियर एंड देयर इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है अपने पेरेंट्स को, अपने फादर और मदर को। और जब भाग रहा होता है तो उसमें क्या होती है, उसकी जो टर्बन है वो खुल जाती है एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ।
Having run to and fro in a race of running for a while, his stood defeated, his cries suppressed into chokes. A little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. But there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Now, after some time, he gave up. वो थक जाता है, and the loud crowds turned into mild mobs. He saw some people standing and talking and tried to find if his parents were among them. और वो कुछ देर के लिए खड़े होके वो सिर्फ टू एंड फ्रो आगे पीछे हर तरफ जो है वो देखने लगता है कि कहीं तो उसके पेरेंट्स दिख नहीं रहे हैं। और वो देखने के बाद उसे कहीं भी येलोइश कलर के मतलब उसके पेरेंट्स आई थिंक येलो कलर के ड्रेस पहने होते हैं। तो वो बहुत देखने की कोशिश करता है पर वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। पीपल जो वहाँ के लोग हैं वो सब अपने में एन्जॉय कर रहे हैं, सब जो है हँस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। द लाफ्टर एंड टॉक्स ऑफ द पीपल वर मीनिंगलेस फॉर द चाइल्ड। पर उस समय उसके वहाँ पे लोग जो हैं बहुत ही एन्जॉय कर रहे हैं बिकॉज़ दैट इज़ द फेयर। और वहाँ पे लोगों को देख के उसे किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस लोगों की हँसी, उनकी बातें जो है इस बॉय के लिए मीनिंगलेस होती है बिकॉज़ अम, ही वाज़ ओनली सर्चिंग फॉर हिज़ पेरेंट्स। वो सिर्फ़ जो है अपने पेरेंट्स को ढूँढने की कोशिश कर रहा होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो I will send you soon. After that, keep watching. Thank you, and I hope you understand. And third part of this chapter, I will upload soon. Thank you.